Hello, good evening, everybody. So, my dear friends, welcome once again in today's daily news analysis. Okay, so today, 24th of November 2025. Okay, today I have got some news regarding the India, Brazil, and South Africa Trilateral Association. Okay, then also some related news related to United Nations Security Council reforms. Okay, then we have also some news regarding to traditional medicine. Okay, what is traditional medicine, why is it important, and some rollover news from the past articles. Like the main past article was presidential reference to judiciary and judiciary's response. In light of that, three articles are there. Okay, but I'm sure that this article is winding up now, or tomorrow or day after tomorrow there will be no news on this presidential reference, because any article which comes into the news, that remains for 2-3 days, so that you can cover up all the points, prelims, mains, critical points, positives, negatives. Every aspect is covered by newspapers throughout the 3-4 days. So once you are watching current affairs, make sure you are watching every day, because on one day I will cover one article which may be positives, another day I will cover another article which may be negatives, third day I will be taking a maybe neutral stance, maybe comments of few legal luminaries. Like in today's article, there are comments of Chief Justice, former Chief Justice now. Okay, former Chief Justice Gawai. Okay, so moving to the first article today. The first article is from the front page of the Hindu newspaper, and also its continuation was in page 12 and page 8. We have an editorial on it also. So okay, it is related to the presidential reference. Okay, I have already told you basics we have discussed under article 131, under article 143. Okay, so there are basically article 143 talks about the center's the powers of president to refer some questions for opinion to president. So 14 questions which I have already discussed were referred to the president. After retirement, Chief Justice B.R. Gawai. Okay, Chief Justice B.R. Gawai. Now he is the former Chief Justice. He has made some comments today. Various states criticized that Gawai has after answering the question, Gawai has basically डन अवे विद द अर्लियर जजमेंट. जो पहली जजमेंट थी, गवर्नर को 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया था बिल्स पे कार्रवाई करने के लिए, वो जो है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जो है वो खत्म हो गई वो वाली जजमेंट. लेकिन जस्टिस गवाई ने कही कि 8 अप्रैल वाला जजमेंट जो है उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से वो जजमेंट खत्म नहीं हुआ, बिकॉज ये उस जजमेंट का रिव्यू नहीं था. These were separate questions which were sent to judiciary by the president, and we have responded to that. ठीक है. फिर जस्टिस गवाई का ये कहना है कि हमने जो है ये पहले ही मेंशन कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पिलर टू पोस्ट ना जाना पड़े अपने बिल्स पास करवाने के लिए. एक बार स्टेट गवर्नमेंट बिल पास कर दे, गवर्नर के लिए ये इमीडिएट है कि वो उस पर कार्रवाई करे. ओके, विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. लेकिन मेंशन नहीं है वहां पे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम और एट द अर्लीस्ट. इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. इसी को लेते हुए जस्टिस गवाई ने यह भी कहा था कि हम टाइमलाइन तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल मतलब रीजनेबल लॉजिक लगा के. कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो हफ्ते में पास हो सकते हैं, कुछ बिल जो महीनों में, साल भर तो कोई बिल पेंडिंग नहीं रह सकता. ठीक है, ये इसमें डिस्कशन हुआ है. ठीक है, और इसमें डिस्कशन हुआ है कि हमने जो कहा कि 3 महीने तक अगर कोई बिल पास नहीं किया जुडिशरी ने, उसको क्या मानेंगे हम कि वो डीम्ड एसेंट मानेंगे, मींस वो पास हो चुका. ठीक है. इस पे उन्होंने कहा कि हाँ, ये सिर्फ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, केस टू केस बेसिस के लिए हमने जजमेंट दिया, लेकिन हर बिल पे डीम्ड एसेंट अगर हम लगा देंगे तो फिर प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, या उसका प्रेसिडेंट का या गवर्नर का ऑफिस जो है वो डिफंक्ट हो जाएगा. ठीक है. और इसमें जस्टिस गवाई ने 2-3 बातें और कही. क्या कहा कि जो रूटीन बिल है वो एट द मैक्स 1 मंथ में पास हो जाता है. अब ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, उसका ओपिनियन है. नाउ इट इज एन ओपिनियन. व्हेन ही वाज सिटिंग इन द चेयर ऑफ चीफ जस्टिस, दैट वाज द जजमेंट. नाउ ही इज गिविंग ओपिनियन एज एक्स चीफ जस्टिस. ठीक है. तो क्या कहा उन्होंने कि रूटीन जो है 1 मंथ इज सफिशिएंट रूटीन बिल के लिए, और जो बिल इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी से रिलेटेड है उसमें कुछ महीने लग सकते हैं, 3 to 4 months. ओके, रूटीन बिल्स 1 month एंड बिल्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसीज, बिल्स रिलेटेड
टू इमरजेंसीज। इमरजेंसी से रिलेटेड बिल्स के लिए 3-4 महीने लग सकते हैं। अब ये उसका ओपिनियन है, आई एम अगेन टेलिंग यू, ये जजमेंट नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, उसके बाद उससे ये पूछा गया कि क्या जुडिशरी और लेजिस्लेचर फ्रिक्शन है आपस में कुछ, क्या उनके बीच में कोई तनाव है? तो उसने कहा कि फ्रिक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर को बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, बहुत सारी चीजों में करेक्शंस करती है, ठीक है? तो तनाव होना जो है दैट इज नॉट तनाव होना इज नॉट ए न्यू थिंग इन द जुडिशियल सिस्टम। समझ में आ गया आपको? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, जो डिस्कशन में आया है, नेक्स्ट चीज जो जस्टिस गवाई के आर्टिकल में इन्होंने डिस्कशन किया कि जो जब भी जज डिसीजन देता है वो ये नहीं सोचता कि क्या गवर्नमेंट इसमें दूसरी पार्टी है या कोई आम आदमी है, गरीब है, अमीर है। जुडिशरी डज इट्स फंक्शंस वेरी न्यूट्रली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है? तो जब उनसे ये ओपिनियन पूछा गया कि क्या कभी भी आप में ऐसा हुआ कि आप गवर्नमेंट के प्रेशर में आए, तो उसने ये कहा कि बहुत सारे जजेस ने पहले भी नो कही है, मैं भी नो कह रहा हूं, लेकिन मेरे नो का मतलब है हाँ, सच में ही नो, सच में ही मैं कभी गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं आया। दिस इज फर्स्ट आर्टिकल, ओके। उसके बाद दूसरा आर्टिकल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकेंड आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू सेकेंड आर्टिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हमारे बिल टाइमली पास नहीं हुए तो हम अभी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ठीक है? उसका केरला गवर्नमेंट ने जो मेजरली क्लॉज क्वेश्चन किया है वो ये है कि आप बताते हो कि गवर्नर को बिल पास करना है रीजनेबल टाइम में, बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल टाइम का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? और फिर अगर रीजनेबल टाइम से ज्यादा आप टाइम लेते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में रिस्पांस दिया है, तो क्वेश्चंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट बिल के ऊपर क्या एक्शन लेता है और क्यों लेता है ये हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसका ओपिनियन है, उसका पर्सनल परसेप्शन है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। ओपिनियन जो है उसका रैशनल लॉजिक वो क्वेश्चनेबल नहीं है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन एक्शन ही नहीं लिया, बहुत देर तक बिल पेंडिंग रखा, दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। मींस इनएक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो इनएक्शन के ऊपर अगर कोई भी इनएक्शन हो, कोई भी काम ना करे उसके ऊपर, बिल के ऊपर, और पेंडिंग रखे अनड्यूली, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम फिर से सुप्रीम कोर्ट को मूव करेंगे, ठीक है? अभी केरला के जैसे कुछ बिल्स पेंडिंग है गवर्नर के पास, वो कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला, हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल, ये बिल भी पेंडिंग है किसके पास? गवर्नर के पास, ठीक है? और कुछ और बिल्स हैं जो क्रुएल्टी एनिमल्स बिल जो है वो भी प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, ठीक है? देन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, देन यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल। तो कई सारे बिल्स जो यहां से मेंशन है, मैं देख रहा हूं यहां पे, केरला अमेंडमेंट बिल, एनिमल्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स अमेंडमेंट बिल, देन केरला फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल, केरला एक्सेस लैंड अमेंडमेंट बिल, पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, ये सारे बिल्स जो है किसके पास है? गवर्नर के पास पेंडिंग है। तो अगर ये रीजनेबल टाइम से ज्यादा पेंडिंग रहे तो केरला क्या कह रहा है कि वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। यही एक इशू हाईलाइट किया था परसों वाले आर्टिकल में, बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें यह कहा गया था कि इसने फर्दर ओपन कर दिए फ्लड गेट्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच के, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके और गवर्नर के बीच के लिए कई सारे लिटिगेशन जो है वो फर्दर। तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि फ्लड गेट्स फॉर फर्दर लिटिगेशंस हैव बीन ओपन्ड, फ्लड गेट्स फॉर फर्दर litigations have been opened. This was the theme of that article. तो ये आज उसका एक मैनिफेस्टेशन है कि केरला गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमारे बिल्स टाइमली पास नहीं हुए तो हम फिर से जुडिशरी की तरफ जाएंगे, ठीक है? अब इसमें सबसे अच्छा आर्टिकल आज के एडिटोरियल में आया है, ठीक है? एडिटोरियल में ये आया है कि जो रिसेंट रिप्लाई है, जो रिसेंट रिप्लाई है to the presidential reference, recent reply to presidential reference, उसने क्या काम किया? उसने
लेटर को जिताया, लेटर हैज वॉन एंड स्पिरिट हैज नॉट लॉस्ट, स्पिरिट एंड हैज नॉट लॉस्ट। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड टॉपिक फॉर मेंस एग्जामिनेशन, कि लेटर कैसे उसने जिंदा रखा और स्पिरिट को भी कैसे उसने हारने नहीं दिया। मैं बताता हूं। लेटर का मतलब होता है वर्डिंग, एग्जैक्ट वर्डिंग रिटन डॉक्यूमेंट की जो है वो जिंदा रही। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे सारे रिस्पॉन्सेज में, इज प्रेसिडेंट बाउंड टू रेफर द केसेस टू जुडिशरी ऑल द टाइम, क्या प्रेसिडेंट को हमेशा अपने बिल्स पे साइन करने से पहले जुडिशरी से पूछना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन जहां जरूरत हो वहां पूछना भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रेसिडेंट टाइमलाइन फिक्स कर सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मिनिमम पॉसिबल टाइम और रीजनेबल टाइम, तो कोई लिमिट तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा इंडेफिनिटली बिल के ऊपर बैठना सही नहीं है। तो लेटर का मतलब द वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज ऑल्सो बीन केप्ट, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को भी मेंटेन रखा, द वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। लिटरल मीनिंग जो है उसका हैज बीन केप्ट एंड स्पिरिट हैज बीन लॉस्ट। स्पिरिट मतलब जो उसके अंदर इम्बाइब्ड वैल्यू है, इम्बाइब्ड वैल्यू हैज ऑल्सो बीन अपहेल्ड। जो उसके अंदर इम्बाइब्ड वैल्यूज हैं उनको भी क्या किया गया है? अपहोल्ड किया गया है। ठीक है, अब इम्बाइब्ड वैल्यू क्या है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई बिल पास करे आपको उस बिल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये इम्बाइब्ड वैल्यू है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीइंग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पीपल की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल भी अपहोल्ड किया गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड बाय वर्ड जो आर्टिकल्स कहते हैं उन आर्टिकल्स के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स भी उनमें बता दिए गए। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा जो रिस्पॉन्स है जुडिशरी का जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी अपहोल्ड किया गया है और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को भी अपहोल्ड किया गया है, ये इस आर्टिकल का मेनली थीम है। इसमें दो टाइम पीरियड्स की बात की है, एक आर वेंकटरामन, ओके, प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन, जिनका टाइम पीरियड 1987 से 1992 तक का है। ठीक है, प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन की बात की गई है इसमें। ठीक है, उनके टाइम पीरियड की बात की गई है, आर वेंकटरामन 1987 to 1992, and then the second discussion is about President KR नारायणन। ओके, दोनों प्रेसिडेंट्स के बारे में बात की गई कि उनके पास जब गवर्नमेंट के बिल्स आते थे, ठीक है, बहुत ही जल्दी वो क्विकली बिल्स को पास करते थे। ठीक है, दोनों की वर्किंग को कंपेयर किया गया है इस वाले आर्टिकल में, दोनों की वर्किंग को कंपेयर किया गया है। लाइक आर वेंकटरमन की जो बात है, उनको क्या कहा गया था कि उनका पेन था दैट वाज अ पेन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। वो जो भी काम करते थे कॉन्फिडेंशियलिटी से करते थे और अपना ओपिनियन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी से दे देते थे, लेकिन उनकी बात को गवर्नमेंट कभी भी ठुकराती नहीं थी। और यही हकीकत है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अगर कोई बात कह दे तो वो फाइनल है। ठीक है, लेकिन अब प्रेसिडेंट का ऑफिस आज की डेट में क्या न्यूट्रली फंक्शन करता है, इसके ऊपर भी कई सारे लोगों ने जो है इसमें डिस्कशन किया है। ठीक है, और मॉरलिटी और फेयरनेस कभी भी प्रेसिडेंट वेंकटरमन को अपना काम करने से नहीं रोकते थे, वो हमेशा मॉरलिटी और फेयरनेस को अपहोल्ड करते थे। ठीक है, जबकि जिनका प्रेसिडेंट जो वेंकटरमन का टर्म है, इसके टाइम पे 3 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। ठीक है, राजीव गांधी, ओके, वीपी सिंह और राजीव गांधी प्रेसिडेंट, वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर। ठीक है, एंड चंद्रशेखर, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन किसी के साथ भी उनका जो है कभी भी उनके साथ फ्रिक्शन नहीं आया। हालांकि तीनों फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एरिना में थे और फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनमें पॉलिटिकल उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट जो है उसके साथ कभी भी उनका फ्रिक्शन नहीं आया। ठीक है, हाँ, उसके बाद दूसरी जो बात की गई है दैट इज अबाउट द KR नारायणन। KR नारायणन, उनका कहा था कि उनका पेन, उनके जो जजमेंट्स होते थे, दे वर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दे वर इंडिपेंडेंट, whatever decisions, whatever judgments they passed, they were completely independent. Okay, and this is all which has been highlighted in the article. Okay, then एक बार ये कहा गया कि बीजेपी सेंटर में पावर में थी 1998 में,
1998 में when BJP was in power in center, Bharatiya Janata Party was in power. Okay, then Bihar governor recommended that the government of Rabdi Devi under Article 356, Bihar was being ruled under the leadership of Rabdi Devi, one of the great chief ministers. Okay, तो राबड़ी देवी के टाइम पे गवर्नर ने जो है 1996 में रेफर किया, कहां पे 1996 में रेफर किया केस प्रेसिडेंट को कि आर्टिकल 356 के अंडर जो है यहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए, करप्शन बहुत ज्यादा है, फंड सही से मैनेज नहीं हो पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा पुअर है, इसलिए प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो KR नारायणन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, दीज आर नॉट द सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी इनटू एनी स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है डिस्कस की गई हैं और ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास कभी भी ऐसा उनके पास प्रेसिडेंट के पास जो उस टाइम के प्रेसिडेंट्स थे उनका पॉकेट इतना डीप नहीं था कि वो बिल्स पेंडिंग रखे। पॉकेट वीटो इज डिस्कस्ड हियर। ओके, पॉकेट वीटो इज डिस्कस्ड हियर। ओके, नाउ वन क्वेश्चन हियर इज कि ये वीटो क्या होता है? वीटो, these are special powers of president under which he can deal with the bills which have been passed by the legislature or which have been passed by the parliament. Okay, जो वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट की वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस की गई हैं प्रेसिडेंट के चैप्टर्स में। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें पूरी वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की वो थॉरोली जो है वो डिस्कस की गई है। ठीक है, अब हमारी कंट्री में पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वीटो पावर कितने किस्म की है? बहुत सारे किस्म की है। ठीक है, हाँ, जिसमें मोस्टली आर्टिकल 111 जो है वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट टू द बिल, मींस बिल को पास कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, या प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? विदहोल्ड द एसेंट, या एसेंट नहीं देंगे। ठीक है, एसेंट नहीं देंगे, क्या एसेंट नहीं देंगे। ठीक है, अब उसके पास जो है प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट नहीं देंगे, या फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, फॉर रिकंसिडरेशन, फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब ये वीटो पावर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में दी है। ठीक है, अब कौन कौन सी वीटो पावर्स है? बिल को एसेंट देना या बिल को एसेंट न देना, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीटो, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीटो, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीटो। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा तो वो उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, मींस प्रेसिडेंट ने कुछ देर के लिए बिल को डिले कर दिया है और पार्लियामेंट को कहा है इस बिल को रिकंसिडर करो। अगर रिकंसिडरेशन के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास वापस आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि अब उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा है नो एक्शन, प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं ले उस बिल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। व्हाई पॉकेट वीटो? प्रेसिडेंट ने बिल पे कोई एक्शन नहीं दिया, पॉकेट में बिल डाल दिया, ऐसा मतलब मेटाफोरिकली इस वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, अब पॉकेट वीटो जो है उसमें प्रॉपरली तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको रख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखा है मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको जो है एसेंट देना है। ठीक है, एक और वीटो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, हमारे पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड वीटो। क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन सा वीटो पावर नहीं है, तो देन इट इज क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो मतलब प्रेसिडेंट बिल को वापस भेजे और पार्लियामेंट को बोले कि आपने सिंपल मेजॉरिटी के पास किया, इसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करो या हायर मेजॉरिटी के साथ पास करो, मींस उस बिल की क्राइटेरिया बढ़ा देता है। ठीक है, सेंड बैक टू द पार्लियामेंट एंड फॉर रिकंसिडरेशन एंड अप्रूवल विद हायर मेजॉरिटी। बिल आपको वापस भेजा जा रहा है, आप इसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ या सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर हायर मेजॉरिटी के साथ इस बिल को क्या करो, वापस मेरे सामने
पास करके भेजो, ठीक है। तो ये वाला क्वालिफाइड वीटो जो है इंडियन प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, यू मस्ट रिमेंबर ओनली द एक्सेप्शनल केसेस विच आर देयर टू बी। ओके, समझ में आ गया आपको? अब इसमें हमको एक और चीज देखना है कि पैरेलली आर्टिकल 201 कुछ पावर्स और देता है। 111 हो गया ये वाला वीटो पावर्स, और आर्टिकल 201 जो पावर्स देता है, जो मैं ऑलरेडी पिछले उसमें डिस्कस कर चुका हूं कि आर्टिकल 201 स्टेट के रिलेटेड, स्टेट बिल्स के ऊपर, प्रेसिडेंट्स पावर इन रिलेशन टू स्टेट्स बिल, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं इन रिलेशन टू स्टेट्स बिल, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये सारा जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। अब इस आर्टिकल को आप थॉरोली एक बार पढ़ोगे, यू विल फाइंड इट वेरी वंडरफुल आर्टिकल कि हाउ द spirit of the constitution has been kept alive, and also the letter of the constitution has been kept alive in the presidential answer to the questions which were raised by the president to the judiciary. Okay, now United Nations Security Council reforms no longer an option but a necessity. Our Prime Minister says at the IBSA. What is IBSA? It is basically a trilateral forum, India, Brazil and South Africa. Okay, IBSA. ओके, दिस इब्सा वॉज, अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक्स हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बेसिक्स जान लो पहले, और फिर इब्सा के बारे में बेसिक्स जान लो। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स और क्या क्या जो है ये बातें हो रही हैं। सबसे पहले ये इब्सा का समिट अभी जो हुआ था G20 समिट, उसी के पैरेलल जोहान्सबर्ग में इब्सा का समिट हुआ है, ठीक है। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल को रिफॉर्म करना पड़ेगा, वो हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, अब हमारे लिए वो एक नेसेसिटी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ऑल आई विल डिस्कस, ठीक है। पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द बेसिक्स फर्स्ट, क्योंकि बेसिक्स के बाद आर्टिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, पॉपुलरली नोन एज इब्सा, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। सो दिस इज अ, तीन कंट्रीज के जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्राइलेटरल। क्या कहते हैं उनको, ट्राइलेटरल, ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल initiative of these three countries, IBSA. Okay, now this IBSA was basically formed in 2003 in Brazil. In 2003 these countries met and they signed one declaration that was called as Brasilia Declaration. Brasilia is the place in Brazil. Okay, then Brasilia Declaration led to formation of the IBSA. Okay, कहां पे, ब्राजील में ब्रासिलिया डिक्लेरेशन साइन हुआ 2003 में, ठीक है। अब इसमें मेनली उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन कंट्रीज के, क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन कंट्रीज के, ठीक है। अब रिसेंटली जो है इसका जो इब्सा का जो समिट हुआ लेटेस्ट, वो कहां हुआ, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और जोहान्सबर्ग में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। ओके, उसके बाद इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने एक स्पेशल फंड भी डेवलप किया फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाने के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए और हंगर को हटाने के लिए, पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन के लिए। इन 2004 वन स्पेशल कलेक्टिव फंड वाज set up by these three countries, that is known as IBSA fund, India, Brazil and South Africa fund, ठीक है, मेनली फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब ये इब्सा जो है, इसका मेनली काम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए उन चीजों पे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स को कैसे रिफॉर्म किया जाए इन दोनों के तीनों कंट्रीज में, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने इस बार की, वो उन्होंने बात की किसके बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। दे हैव टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है,
one of the 6 organs of यूनाइटेड नेशंस, वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का फाउंडेशन जो है वो हुआ किस चीज के लिए? यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड फॉर द पर्पस ऑफ dealing with global issues, particularly post World War II period, because after World War I there was also one international organization जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1919 में 1919 में लीग ऑफ नेशंस जो एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद लेटर ऑन जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो यूनाइटेड नेशंस था। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस का टर्म है, इट वाज क्वाइंड बाय एफ.डी. रूसवेल्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट एफ.डी. रूसवेल्ट। ओके, एंड इस की फाउंडेशन के लिए जो यूएन डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन वाज साइंड इन 1942। इन 1942 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन वाज साइंड, और उससे एग्जिस्टेंस में क्या आया? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन जो है उसके लिए एक एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट था उसका नाम था यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूएन चार्टर। ओके, यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ये फाइनली ऑफिशियली इट वाज साइंड इन 1945। ओके, तो मोस्टली अब ये जो यूएन चार्टर का जो है यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन का ईयर जो है वो इसी को माना जाता है, किसको? 1945 को। ठीक है, अब आज की डेट में इसमें मोर देन 193 मेंबर, सॉरी 190 से ज्यादा मेंबर्स है, 193 मेंबर्स है। ठीक है, इसके जो 6 मेन ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, वन इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए। सेकंड इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो हर साल सितंबर के आसपास में मिलते हैं, मेंबर कंट्रीज के जो है वो सारे जो है वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देन यूएन सेक्रेटेरिएट। तो अभी की डेट में इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा इशू है। ग्लोबल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सारे कौन डील करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल डील्स विद, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर। Responsible for what? Maintenance of international peace and order. Maintenance of international peace and order. Now, what are the reforms which are required in United Nations Security Council? Okay, in United Nations Security Council, there are basically 15 members in total. Okay, how many members are United Nations Security Council? In UNSC, I am writing here. I must change the color of pen so that you can get to know that some additional points are being written. Okay, so in totality United Nations Security Council has 15 members. Okay, 15 members. Okay, the members are divided into 2 groups. One is P5, 5 permanent members, and one is P10, 10 non-permanent members. 5 permanent members: USA, China, France. Okay, sorry, 5 permanent members and 10 non-permanent members. 5 USA, China, France, Russia and Japan. Okay, sorry, 5 permanent members, P5, not Japan, USA, UK,
Russia, France, and China. The first reform is that since its establishment in 1945, more than 80 years, we have only these 5 permanent members. Doesn't any other country decide permanent membership? India is one of the greatest contender for permanent membership. Okay, now 10 permanent members. Okay, how many? 10 non-permanent members. Okay, now 5 out of these 10, 5 are elected every 2 years. 5 elected every 2 years, and 5 new are elected every year. 5 new elected every new year. Every year another 5 members are elected. ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंसी, who presides over the United Nations Security Council meetings? In circle, it is rotating. Okay, India got the presidency of United Nations Security Council in 2022. India presided over the United Nations Security Council. United Nations Security Council. Okay, each member has 1 vote, but the veto power, these 5 members have veto power. Means if any one of these 5 members disagree to a proposal, अगर इन 5 में से कोई एक भी proposal के साथ disagree करता है, वो proposal आगे नहीं बढ़ पाता. ठीक है, इसकी वजह से कई सारी चीजें जो है वो, कई सारी चीजें क्या होती है इसमें, कई सारी चीजें इसमें रिफॉर्म्स, रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो पाते. ठीक है, स्पेशल ग्रुप बना 4 कंट्रीज का, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, जो क्या कह रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट्स चाहिए. G4, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. ओके, ये वो कंट्रीज हैं जो चाह रही हैं कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट करती हैं, कि एक दूसरे के लिए कि ये इंडिया कहता है कि जापान को मिलना चाहिए, जर्मनी भी कहता है, ब्राजील भी कहता है, फिर ये 3 मिलके ब्राजील का सपोर्ट करते हैं, फिर ये तीनों मिलके इंडिया को सपोर्ट करते हैं. मींस दे सपोर्ट ईच अदर बिड्स फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, अब इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों बनाया जाना चाहिए, इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं. ठीक है, उसके रीजन ये बताया गया है कि पहला रीजन जो बताया गया है वो ये बताया गया कि इंडिया अभी तक 8 दफा तो नॉन परमानेंट मेंबर रहा है. 8 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर. ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर. उसके बाद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ओके, 2nd most populous country in the world, 2nd most populous or 2nd most largest democracy in the world, or largest democracy in the world, I must say, one of the largest democracy with 2nd most population. Okay, ये सारे इश्यूज हैं इंडिया के. ठीक है, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 43 पीस कीपिंग मिशंस में क्या किया है, 43 पीस कीपिंग मिशंस. जो मिशंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैरी करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड एज पीस कीपिंग मिशंस. सो 43 पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पार्ट लिया है. ठीक है, और इंडिया के लिए जो है कई सारी कंट्रीज जो है वो सपोर्ट भी करती हैं कि इंडिया को परमानेंट जो है वो मेंबरशिप मिलना चाहिए. ठीक है, हाँ, अब देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की बिड को एक भी मेंबर अगर अपोज करे तो उसको परमानेंट मेंबरशिप देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इंडिया के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ब्राजील जो है वो ब्राजील का अर्जेंटीना अपोज करता है, जापान का ऑस्ट्रेलिया अपोज करता है. ठीक है, और स्पेन और इटली करते हैं जर्मनी की बिड को अपोज. इसलिए ग्रुप 4 में से, G4 में से अभी तक किसी को भी परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हासिल नहीं है. तो यही डिस्कशन इब्सा के डायलॉग में हुआ. ठीक है, और इब्सा में हमारे, अब मैंने बेसिस के बाद इजी आपको बता दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डायलॉग की बात की है. ठीक है, उसके बाद ये कहा कि वी नीड यूनिटी एंड कोऑपरेशन. वी नीड यूनिटी एंड कोऑपरेशन फॉर ह्यूमैनिटी. यूनिटी एंड कोऑपरेशन फॉर ह्यूमैनिटी, ये चीज हमारी जो है इस वक्त सबसे बड़ी नीड है. उसके अलावा हमें क्या जरूरत है
कि हमको जो है सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है आपस में बढ़ाना चाहिए, तीनों कंट्रीज को सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो तीनों कंट्रीज को बढ़ाना चाहिए। कैसे? ये तीनों कंट्रीज एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई विल टेल यू वेरी शॉर्टली, ठीक है। दे आर डूइंग अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दीज थ्री कंट्रीज, आई जस्ट या इट इज IBSA maritime exercise, okay, these three countries are doing one joint exercise that is called as IBSA maritime exercise, okay, I will write here, it is IBSA, MAR, IBSAMAR means IBSA, India, Brazil, South Africa maritime exercise. Maritime exercise means training and exercise of naval forces, defense cooperation in navy, maritime exercise, IBSAMAR, okay. IBSAMAR जो है it has been held so far 6 times. It was started in 2018. Now sometimes what UPSC asks in the questions, which of the following is true about IBSAMAR, okay, so in that way you can see the questions and respond the questions accordingly. Clear? Okay, now this is what reforms, okay. Further, what we have said that IBSA fund, which has been established already, we also have now said that this IBSA fund needs to be made for climate resilient agriculture, because dealing with climate change is very, very difficult, okay. Then we are having next year AI Impact Summit in India, okay. The members have also been invited for that also, okay. So this is all you must understand, that IBSA, what is IBSA and what is how cooperation has been sought in including the United Nations Security Council reforms. Get the point? Okay. Now I'm proceeding further on the next article, okay. Yeah. The next article talks about the future of health lies in harmony, okay. So basically it says that we need to harmonize health sector. We need to harmonize which sector? Health sector. Precisely it is talking about traditional medicine. The article talks about one important thing, that is traditional medicine. So first of all, I would highlight here what is traditional medicine, okay. What has happened? What wrong is going on with this? Okay. Yeah. So it is talking about traditional medicine first of all. The major talk is about traditional medicine. What is traditional medicine? Traditional medicine is that branch of medicine, medical sciences, which we use for what? We use for treating the various ailments using the knowledge and skills of past, ठीक है, past practices which are indigenous to a country. So traditional medicine simply means total sum of knowledge, skills and indigenous practices. Sum total of knowledge. पुराना जो traditional knowledge है, rather traditional knowledge, skills, practices and indigenous practices which are indigenous. This is called branch of traditional medicine, okay, which have been used by different cultures, in past. In India, we have various branches of traditional medicine, okay, like which one? We have yoga. In India, we have yoga. Yoga is a branch of traditional medicine. We have Siddha. We have yoga. We have Siddha. Then we also have Ayurveda. These are the branches of traditional medicine in India. Okay. Now, Siddha is basically followed in South Indian state, a traditional medicine system which has been followed in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. Okay. This is the Siddha branch. Okay. Then there is also one more that is called as Sova Rigpa. This is also a traditional medicinal practice, Sova Rigpa. Sometimes in prelims they ask you Sova Rigpa. Okay, they may ask you. Okay, Sova Rigpa is practiced in Leh Ladakh and the Himalayan region, northeastern region. Okay.
It is in Leh, Ladakh, Himachal Pradesh, and Northeast. This is where Sowa Rigpa as a traditional medicine is used. Okay, Northeast, in northeastern states. Okay, so this is where Sowa Rigpa is used. Okay, we have also Unani, we have also homeopathy. These are all the branches of traditional medicine. These are all the branches of traditional medicine. Okay, now what does this article talks about? This article says that lifestyle has become so much changed. We have this article says about few things. First thing, it says that there is disease burden. Different disease are there. Okay, plus we have changed lifestyle. Every day then we need a medicine. अब हम अगर मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएं तो मॉडर्न मेडिसिन इज वेरी डिफिकल्ट. Why modern medicine is difficult? Because it leads to environmental degradation also in so many cases, and researchers have planet has made so much progress, so we need sustainability, we need innovation, etc, etc. That's why we should follow an integrated approach of traditional medicine and modern medicine for dealing with various ailments. Now, why traditional medicine is important? Why traditional medicine is important? Because traditional medicine supports biodiversity. It is good for biodiversity. It is good for biodiversity. It supports food security. Food security. It supports various livelihoods. Okay, and it also supports the concept of integral health. The concept of integral health. Integral health means health of body, mind, and soul. Integral health. It supports the concept of integral health. Okay, moreover, it has said that healthcare system in our country is consistently evolving. So rather than taking the medicines which are curative, we should take preventive medicine. Yoga is a preventive medicine. Consistently, if you perform yoga, so many diseases you can just avoid by performing simple yoga exercises, like the breathing exercises, like the different asanas which are prescribed in yoga, joint pain relievers, etc, etc. So it becomes basically what is the need of a perfect balance between body and mind. So for that matter, the traditional medicine has been focused in this article. Body and mind, harmony of body and mind has been focused in this article. Okay, now there are also various departments. One such department in India is Ayush. Okay, Ayush department is basically for Ayurveda purpose. Okay, now also Global Summit on Traditional Medicine was held in Gujarat. Okay, Global Summit on Traditional Medicine 2023. Okay, 2023, one summit called as Global Summit. Global Summit on Traditional Medicine. It was set up in Gujarat, and even one of the first traditional medicine center has been set up in Gujarat also for the purpose of promotion of traditional medicine. Okay, for the promotion of traditional medicine in Gujarat, we have set up one center. That center is called as Global Traditional Center for Global Center for Traditional Medicine. Global Center for Traditional Medicine, GCTM, Global Center for Traditional Medicine. It has been set up in Gujarat for promotion of traditional medicine in our country. Get the point? So it has been set up with the aid of World Health Organization. Now see how global level partnership. Okay, now this year summit again we have planned in December 2025 in India. Okay, and the theme will be restoring balance, the science and practice of health and well-being. So this year we have decided the 2025 Global
समिट, ये कहां पे होगा? ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल हेल्थ. It is going to happen in December 2025. Detailed articles will follow after this summit in the newspaper. Okay, and the theme will be the theme I have told you already. The theme this year will be the theme has been mentioned here. Yeah, I just found it here. Somewhere here I just wrote it. Okay, Government of India signed memorandum, Second World restoring balance, the science and practice of health and well-being. Okay, restoring balance, the science of balancing health and well-being. Health and well-being, the science of balancing health and well-being. Okay, so this is the theme for this year's global summit for traditional medicine. Global summit for traditional medicine. Okay, now next, an RTI was filed by some RTI activists. Okay, The Hindu itself filed an RTI regarding the African grey parrot. African grey parrot, very, very important for ecology and environment purpose. Okay, African grey parrot is being traded extensively in our country. Now, why African grey parrot is important? Please understand the basics of African grey parrot. Okay, yeah, African grey parrot, an endangered bird among the parrot species. African grey parrot is an endangered bird among the endangered bird. Okay, now different forest departments have given response to the Hindu RTI filing entity. Okay, that African grey parrot, we don't have any official record. Okay, it is one of the most intelligent parrot. Among the parrot species, it is one of the most intelligent. Okay, and why? Because of its intelligence, it is being taken by people for breeding as well as for pet as a pet. Okay, two main subspecies are Congo African grey parrot, Congo African grey parrot, Congo African grey parrot, and the second one is basically the Timneh African grey parrot. Timneh, Timneh, Timneh African grey parrot. Timneh African grey parrot. Grey parrot. Yesterday only I told you CITES, conservation of CITES. Okay, Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna. CITES says it is a Schedule 1 species. CITES says it is a Schedule 1 species, and International Union on Conservation of Nature and Natural Flora and Fauna, IUCN, says it is an endangered species. Endangered species means if not protected, it may go into critically endangered and then extinct. Okay, Schedule 1 species means you should have detailed documentation, licenses, import permits, export permits for the purpose of conserving or breeding or keeping this as pet. Okay, now what are the exceptional talking and comprehensive skill? I told you intelligent because two skills: talking skill, exceptional, and comprehension, समझना, बात को समझना और बोलना, कॉपी करना, एक्सीलेंट स्किल्स, इंटेलिजेंट. ओके, अब इसमें क्या है, मेजरली जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अब ये हमारे इंडिया के अंदर नेटिव नहीं है, लेकिन तमिलनाडु सदर्न स्टेट जो है इसका हब बन चुकी है इसके किसकी ब्रीडिंग की. अब जो चीज नेटिव नहीं होती उसको कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, विच आर नॉट नेटिव. तो एक्सोटिक स्पीशीज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा.
अब इंपोर्ट करने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसेस की जरूरत है, लेकिन इंडिया के अंदर रिकॉर्ड में ये है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि ये वाली स्पीशीज हमारे पास है। लेकिन स्टिल तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब में कहां से आ रहे हैं फिर? ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ दीज। अब इसका मेजरली हैबिटेट कहां है? इट इज नेटिव ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ओके, इट इज अ नेटिव ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो इसी के बारे में बात की गई कि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग क्यों नहीं है, और ये जो स्पीशीज है अगर प्रिजर्व नहीं किया जाए तो इलीगल ट्रेड की वजह से ये इंडेंजर्ड से क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड से धीरे धीरे एक्सटेंशन की तरफ चली जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू सी। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सीड डिस्पर्शन इन अफ्रीकन इकोसिस्टम। ओके, अब ये सीड डिस्पर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, सीड डिस्पर्शन, डिस्पर्सेस सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गेट द पॉइंट? सो ये है ऑल अबाउट अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ओके, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए जो जो चीजें हम बोलते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओके, नाउ इट इज द टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टुडे वन टर्म इन न्यूज। अगेन, once again, this term has become come to the newspaper, that is cyber slavery. Okay, so I have told you already, slavery means when you are forced to do so. When you are forced to do something through digital means, it is called cyber slavery. It refers to basically trafficking of individuals from one place to another place through fake job offers, and then making them to do prohibited activities, illegal activities, under the pretext that you have their information in digital form that will be leaked, that will be shared. ठीक है, साइबर स्लेवरी का मतलब यह है कि स्लेवरी इन द फॉर्म, स्लेवरी इन backdrop of digital data लीक। अगर किसी का डेटा लीक हो चुका है, उसको फिर कंपेल करते हैं कि अब तुम गलत काम करने के लिए जो है गलत काम करो। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रैफिकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू फेक जॉब ऑफर्स एटसेट्रा। हाँ, इट इज बेसिक, इट इंक्लूड्स ट्रैफिकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स using cyber means, digital means. Okay, and then forcing them to do illegal activities. Then उसके बाद उनको force करना into illegal activities. This is all you need to know about cyber slavery. ठीक है, तो ये आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस था, वेरी थॉरो। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं पढ़ाता हूं उसे याद रखो, और वो आपको हेल्प करेगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी और आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी। डेटा हमेशा जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। लाइक आर्टिकल 143 के बारे में मैंने बात किया, आर्टिकल 140, 131, आर्टिकल 111, आर्टिकल 100 एंड 131, 111, 143, आर्टिकल 201, पॉलिटी, इतने आर्टिकल्स की बात हुई आज। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में इब्सा की बात हुई। ठीक है, G4 की बात हुई। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस की बात हुई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में, हेल्थ में ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हुई। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके पहले बेसिक्स, फिर एडवांस, फिर उससे एडवांस, सुपर एडवांस लेवल तक आपको समझ आएंगे अगर करंट अफेयर्स को थॉरोली फॉलो करते हो। ठीक है, thank you so much for joining me. We'll meet again tomorrow. Okay, in tomorrow's class I'll again meet you people. Thank you.